Good morning to all of you. Good morning. Good morning. So in last class we were discussing South Gandhi's political journey, right? How it started from South Africa. So one basic concept, the most important concept you have understood. Okay, that Gandhi went to South Africa, and the purpose was previously not to lead a movement in South Africa. ऐसा कोई purpose नहीं था गांधी का. Gandhi did not have such, you can say that, pre-decided any such notion, but he got the opportunity. He just experienced uh, a kind of colonial discrimination that was done with South African people. He was experiencing this. He also felt or experienced personal humiliation. Clear? The train incident I've already discussed with you. Okay. And when he realized that Indian people are not treated with respect or their rights are not being granted, and how British are very smartly denying to give the people of Indian origin, the indentured laborers or Girmitia laborers, right, the rights which they deserve in the form of franchisee. And for that purpose, the British government introduced disfranchisement bill. Gandhi became the voice of dissent, clear, in South Africa. And then he did what? He started organizing the people or the masses for this cause, right? And for organizing the people or the masses, Gandhi set up some farms. Farms means ashram in South Africa, okay, to train the people, okay, to be unite, okay, to train them that how to live a community life. For example, you must have heard the name of this ashram that is called Phoenix Farm in South Africa. बहुत ही popular है Phoenix Farm in South Africa. Okay, Tolstoy Farm in South Africa. इंडिया में आप आते हो तो क्या देखते हो? The same thing. Tolstoy Farm in South Africa, right? So this was to train the people for community life. Community life के लिए लोगों को train करना था. In India also, you must be familiar with many such names of the ashrams like Sabarmati, Vardha. सुना होगा आप लोगों ने. Okay, so this is the same kind of thing. Farm, community life. So what this community life is capable of doing? So we all know Indian people. Okay, the four varna structure was very popular in India. It's still a part of our culture, four varna structure. So what will happen? Okay, Hindu, Muslim, unity will be promoted. The unity among different castes will be promoted. So this was the basic idea, and for that reason Gandhi was starting community life. Okay, training the people in the arts of Satyagraha. So while the people will leave the community life here, so Gandhi will train them in the arts of Satyagraha, right? Gandhi will train them in the arts of non-violence, persistence of truth. What is, okay, non-cooperation, passive resistance? What is civil disobedience? So Gandhi will train the people, okay, in these arts. That with these arts, with these strategies, we will be capable of fighting with the colonial rule. Okay, that is the most important point. He also formed an association that is known as Passive Resistance Association. Passive resistance, was it used during Swadeshi movement? Yes. Was it official or not official? It was not official. इसका मतलब Gandhi was also familiar with this strategy, and he was experimenting this strategy in South Africa, passive resistance. Okay, so Gandhi also formed an association that is known as Passive Resistance Association in South Africa. ये भी बनाया गांधी ने. Then British government came with another discriminatory law or the practice that is known as Asiatic Registration Act 1906. It was another example of promoting discrimination. Okay, Asiatic Registration Act 1906. अभी भी गांधी साउथ अफ्रीका में थे. So this Asiatic Registration Act was also called Black Act. इसको साउथ अफ्रीका में लोगों ने क्या कहा? Black Act. Clear? Because this was a discriminating law. This was a law that was introduced to humiliate, right, Asian people, Indian people. The basic objective is this. ठीक है, कि आपको हमेशा
आइडेंटिटी कार्ड लेके चलना है. गॉट इट? ये बहुत बड़ी बात है. यू विल ऑलवेज कीप योर आइडेंटिटी कार्ड विथ यू. ओके, और कोई भी यूरोपियन, ब्रिटिश आपसे वो आइडेंटिटी कार्ड मांग सकता है. ठीक है, आपको वो दिखाना पड़ेगा. यू विल हैव टू प्रूव इट. ठीक है, और उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. ठीक है, मतलब सिंपली बात ये है कि यू विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ विथ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रार फॉर एशिया. उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, आपके डाटा लिए जाएंगे. ठीक है, आप कहाँ रहते हो, डिटेल्स इकट्ठी की जाएगी. एंड देन यू विल ऑलवेज कैरी अ काइंड ऑफ identity card with yourself. So what the government was doing in South Africa, the colonial government was trying to alienate Indian people. उनको आइसोलेट करना, अलग थलग करना. और जब आप ऐसा करोगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स में आपका पार्टिसिपेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जैसे इंडिया में फोर वर्ना स्ट्रक्चर है. ओके, सो इफ यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग शूद्रास एज अनटचेबल्स, so will it affect the business, their participation in trade and commerce? Yes. ठीक है, एंशियंट टाइम में ये चीजें थी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स में भी उनका पार्टिसिपेशन डिक्लाइन होगा, एजुकेशन सिस्टम में भी पार्टिसिपेशन डिक्लाइन होगा. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, एंड दिस विल गिव अस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. ओके, वी ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल. मेरी बात समझ गया ना? इसमें कास्ट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए. आपके पास आपकी फैमिली की एक ग्लैमरस हिस्ट्री है, उसका भी कोई रोल नहीं होना चाहिए. गॉट इट? नेपोटिज्म इन बॉलीवुड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर व्हाट रीजन? फॉर दिस रीजन. मेरी बात समझ गया ना कि इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव द एबिलिटी, यू शुड कम फॉरवर्ड. ओके, एंड यू प्रूव योर टैलेंट. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो गांधी वाज डूइंग ऑल दिस. इट मींस दैट now there are some strategies which Gandhi is using in South Africa. Now we have to discuss that what are those strategies. Obviously we'll discuss all those strategies in detail, but let's discuss some of the influences on Gandhi. That is the most important part, because in prelims the question have been asked from this portion. So read this: influences, important influences on Gandhi. Important influences on Gandhi. ठीक है, so there are many such influences, but I will discover, okay, a few areas here. Okay, the most important ones which may be important for our exam also. That what are the ideological influence on Gandhi. So we are going to discuss here three personalities first. Okay, and then I will discuss the basic principles, क्योंकि इन तीन का reflection सबसे ज़्यादा है. The first important personality is H.D. Thoreau. H.D. Thoreau is the first important personality. That is Henry David Thoreau is the first important personality. So we are going to discuss the personalities one by one. So this is H.D. Thoreau. Okay. The second name is Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. And the third name is John Ruskin. John Ruskin. So what are the important influences on Gandhi we need to discuss? So first I am going to discuss the influence of Henry David Thoreau. The influence of Henry David Thoreau, right? This is a very important topic. Clear? The name is important. Years आपको याद नहीं रखना है, right? 1817 to 1862. ठीक है, ये टाइम पीरियड है हेनरी डेविड थॉरो का. बॉर्न इन 1817 एंड ही वॉज एन अमेरिकन. ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे. ही वॉज अ फेमस एसेइस्ट ऑल्सो. ही वॉज अ फेमस क्रिटिक ऑल्सो. वैसे जो एसेइस्ट होता है वो क्रिटिक तो होता ही है. ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ फिलोसोफर. ओके, नाउ we can simply imagine that if you are a critic, if you are a poet, if you are a philosopher, so the socio-economic and political conditions of your country are going to affect your thoughts. आप लिखोगे, जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करोगे, and you will write. Okay, so Henry David Thoreau will write what he wrote. Okay, he wrote a very famous essay. ठीक है,
and the name of that essay was Civil Disobedience. Essay का नाम ही था Civil Disobedience. So he wrote a very famous essay, and the name of this essay was Civil Disobedience. Civil Disobedience. ठीक है. अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझो. ठीक है. अमेरिका, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ अमेरिका एंड द फ्रीडम ऑफ अमेरिका, यही ईयर आप मान सकते हो ना, 1776 बताया था आपको. ठीक है. एंड अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, बट इट वाज नॉट मॉडर्न. द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका मेड इट एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट नॉट अ मॉडर्न कंट्री. व्हाई? वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बताया, बिकॉज इन अमेरिका स्लेवरी वाज परमिटेड. यहाँ पे किस चीज को परमिशन था? स्लेवरी वाज परमिटेड. और अमेरिका में एक सिविल वॉर भी हुआ था, आपको पता है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है. दैट इज फ्रॉम 1861 टू 65. ठीक है ना. यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स दे वर फाइटिंग, और मेन इशू क्या था? स्लेवरी का. ठीक है. नॉर्दर्न स्टेट्स वर अपोजिंग इट एंड द सदर्न स्टेट्स वर सपोर्टिंग इट. और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? गवर्नमेंट ने उस स्लेवरी को मान्यता दे रखी थी. गॉट इट? नाउ if a government accepts slavery, or if the government is permitting slavery by law, so do you think that it is not right, it is not ethical? So what Henry David Thoreau did, ठीक है, देखो इनकी डेथ का ईयर क्या? 1862. सिविल वॉर कब से कब तक है? 1861 टू 65. बट ये मुद्दा उसके पहले इंपॉर्टेंट रहा होगा कि नहीं? Thoreau के टाइम में इंपॉर्टेंट रहा होगा कि नहीं? So what Thoreau did? Thoreau launched a protest against the government which promoted the slavery. तो यहीं से थॉरो की लड़ाई किसके साथ हो गई? स्टेट के साथ. Interest of the individual and interest of the state came in conflict with each other. So Thoreau launched a protest movement against the government, and the issue here is what? Slavery. Issue is slavery. And what is the individual thoughts of Henry David Thoreau? Individual thought of Thoreau is what? That his moral conscience was not allowing slavery to get permitted. Slavery को आप बताओ, आप support करोगे? What will your moral conscience will say? Yes or no? No. And what Thoreau says? That my moral conscience is saying no to slavery. And what the government is saying? Government stand is yes to slavery. It means my moral law and the government law are in a state of conflict. ठीक है? And when your moral law and the government law are in a state of conflict, it's not desirable to follow, to cultivate government law. जब मोरल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, मोरल लॉ और गवर्नमेंट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आपको किस चीज के साथ जाना चाहिए? अपने मोरल कॉन्शियंस के साथ. एंड इन दिस सिचुएशन यू विल डिनाई टू फॉलो स्टेट लॉज. स्टेट लॉज को मानने से इनकार कर दोगे, विरोध करोगे, यू विल अपोज द स्टेट. एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेटजीज टू अपोज द स्टेट? सो थॉरो सजेस्टेड दैट वी कैन रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस. दिस इज व्हाट? Disobedience of the civil law. बताओ, paying taxes, non-payment of taxes will come in category of civil law. So he says that refusing to pay the taxes, this will come in the category of disobedience of civil law. तो हमें ये करना चाहिए. And when we will refuse to pay the taxes, what the government will do? The government may arrest us. वो हमें जेल में लेके जाएंगे. Okay, we will be sent to jail. Okay, and we are ready to go to jail if necessary. And Thoreau says that in this way, if we are fighting for a right cause, if we are fighting for a moral cause, in this situation, we will gain the sympathy of the masses. And we should always be ready to sacrifice our life for the cause of the masses. इससे लोगों की सिंपैथी हमें मिलेगी और इस तरह से हम सरकार से लड़ सकते हैं. ये आइडिया कौन सजेस्ट कर रहा है? थॉरो. और आगे जाके यूज कौन कर रहा है? अभी आपको बताऊंगा मैं. नेशनल मूवमेंट, गांधी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी. गांधी सेज कि जेल इज माई सेकेंड होम, जब भेजना है भेज दो. ठीक है. गांधी डज नॉट फियर द ब्रिटिश अथॉरिटीज, ही इज ऑलवेज रेडी टू गो टू जेल. कहा मेरा दूसरा एड्रेस वही है, जेल ही है, जब भेजना है भेज दो. राइट. सो गांधी, दिस हैज अ वेरी क्लियर इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ गांधी. यहां तक कि
गांधी का पूरा एक मूवमेंट जो है उसका नाम क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना? सॉल्ट सत्याग्रह। अच्छा देखो, जब आप गांधी के बारे में और डिटेल से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट पीपल से दैट गांधी वाज एन एनार्किस्ट। एंड व्हाट इज एन एनार्किस्ट? ठीक है, तो देखो, मतलब गांधी के आइडियाज कई सारी चीजें हैं, उसमें मिक्सचर है कि कैसे गांधी सोशलिज्म को भी, कैपिटलिज्म को भी, एनार्की को भी, सारी चीजों को कंबाइन करते हैं। तो ये बात आपको बाद में समझ में आएगी। फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूं कि हेनरी डेविड थॉरो सेड दैट दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट which governs the least. Got it? That government is the best which governs the least. Okay? And the best state is a state which does not govern at all. ये विचार किसका है? थॉरो का है। The best state is a state which does not govern at all. सबसे अच्छा स्टेट वो है, ठीक है, जिसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, इसी आइडिया को हम क्या कहते हैं? एनार्किज्म कहते हैं। मेरी बात समझ गया ना? एनार्किस्ट कहते हैं। तो थॉरो वाज एनार्किस्ट, यस, थॉरो वाज एनार्किस्ट। और जब आप गांधी के बारे में पढ़ते हो डिटेल, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य इन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गांधी। गांधी राम राज्य की बात करते हैं। स्टेट जरूरी है, बट गांधी का राम राज्य मार्क्स के, ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लेटेरिएट और आइडियल स्टेट से बिल्कुल अलग है। एंड व्हाट सेज गांधी? सेज राम राज्य, इट डज नॉट मीन हिंदू स्टेट। Ram Raj means the people will be governed by themselves. ठीक है? On traffic signal there will be no any traffic policeman. People will obey the traffic rules by themselves. कोई ट्रैफिक रूल वायलेट नहीं करेगा, ठीक है? इसका मतलब वो चीज क्या होगी जिसको हृदय परिवर्तन गांधी कहते हैं कि दैट विल कम फ्रॉम विद इन, यू विल नॉट वायलेट द लॉस। लॉस को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट है। कितना अच्छा हो कि सब लोग अपने मोरल कॉन्सेंस से गाइडेड हो, ठीक है? आप घर से बाहर जा रहे हो, घर में आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़े, वापस आओ तो आपको सारी चीजें सुरक्षित मिले। वो राम राज्य है। ट्राई मत करना, कुछ नहीं मिलेगा घर में, ठीक है? अभी तक राम राज्य आया नहीं है। नेवर नेवर ट्राई दिस, ठीक है? एक बार ट्राई करना, राम राज्य आया कि नहीं, ठीक है? राम राज्य देखेगा नहीं आपको। तो गांधी सेज दैट देखो, ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत ना हो, है ना? हम रूल्स फॉलो करें, ओबे करें, अपने आप करें, कोई क्राइम नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई कास्ट डिस्टिंक्शन ना हो, एक कंप्लीट रिलीजियस हार्मनी का स्टेट हो, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ राम राज्य। इस चीज की बात गांधी करते थे। गॉट इट? तो डू यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ थॉरो on the political ideas of Gandhi? Yes. Okay. So you can write this point that the famous essay Civil Disobedience, okay, written by written by Thoreau. Civil Disobedience written by Thoreau. अच्छा बताओ, थॉरो क्या था? वॉज ही सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म और नॉट? देखो, इंडिविजुअल एंड स्टेट, तो वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, ओके, दैट्स व्हाई ही इज अपोज स्लेवरी। राइट दिस, सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, सपोर्टर ऑफ सिविल राइट्स, supporter of individualism, supporter of civil rights, okay, civil rights, right? Second point, okay, when moral law and government law are in a state of conflict, when moral law and the government law are in a state of conflict, when moral law and government law are in a state of conflict, it's not desirable to cultivate government law. We should go with our moral law. It's not desirable to cultivate government law. We should go with our moral law. We should go with our moral law. ठीक है ना? That is the most important thing, that we should go with our moral law. Okay, हमें अपने moral law के साथ जाना चाहिए. Right, next point. Okay, for this purpose, use of civil disobedience. For this purpose, use of civil disobedience. For this purpose, use of civil disobedience. यूज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, इसके लिए क्या यूज करना है? सिविल डिसोबीडियंस, ओके, राइट। मेथड्स, क्या मेथड्स हो सकते हैं? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रिफ्यूजल टू पे द टैक्सेस, दिस कुड बी वन मेथड। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रिफ्यूजल टू पे द टैक्सेस, ओके, ओके।
Non-payment of taxes. Refusal to pay the taxes. Right. Second point. Going jail if necessary. Going to jail if necessary. Going to jail if necessary. Third point. To win the sympathy of the masses through martyrdom. To win the sympathy of the masses through the martyrdom. To win the sympathy of the masses through the martyrdom. Martyrdom. Right, next point. In this way, Thoreau fought for the cause of civil liberties and Thoreau fought for the cause of civil liberties. Civil liberties के लिए लड़ाई लड़ी Thoreau ने. Fought for the cause of civil liberties. Right, next point. He supported. Okay. The idea to resist injustice through non-violent means. He supported the idea to resist injustice through non-violent means. Through non-violent means. Non-violent means. ठीक है? Right, next point. According to him, or he believes in the idea of purity of the individual. He believes in the idea of purity of the individual. यानी व्यक्ति क्या होता है? सीधा साधा होता है, करप्ट नहीं होता है. ठीक है? He believes in the idea of purity of the individual, but he says that the society and the institutions make an individual corrupt. But he says that the society and the individuals make society and the institutions make the individual corrupt. ठीक है? ये इंडिविजुअल को क्या करती है? करप्ट बनाती है. मेरी बात समझ गए? What is saying that nature is good, individual is good. Nature is pure, individual is pure. हमने क्या किया? हमारी सोसाइटी ने, हमारे डेवलपमेंट ने, हमारे स्टेट ने क्या किया? नेचर को भी डिग्रेड किया. और वैसे ही इंडिविजुअल की मोरालिटी को भी, प्योरिटी को भी सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया? डिग्रेड किया. तो ही वाज अ सपोर्टर ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म आल्सो. वो पर्यावरण को भी सपोर्ट करता था. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. ये भी लिख सकते हो कि इंडिविजुअल एंड नेचर बोथ आर inherently good. Both are inherently good. Individual and nature both are inherently good. दोनों अच्छे हैं. Both are inherently good. ठीक है? Write one more point. That is very important. Right? Thoreau was an anarchist. क्योंकि अभी भी उसने क्या कहा? कि institutions क्या करती हैं? Purity of individual को affect करती हैं. Right? It means what? Right? He was also an anarchist. वो anarchist भी थे. Right? Also an anarchist. Okay. Right. एक लाइन लिखो. That government is the best which governs the least. 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 That government is the best which governs the least. That government is the best which governs the least. Okay. And right, second point. Best government is a state. Best government is a state which does not govern at all. Best government is a state which does not govern at all. Best government is a state which does not govern at all. मेरी बात समझ गए? ठीक है. इसका मतलब क्या है? An individual must obey his or her conscience. ठीक है? That is the most important thing. And you can oppose state law when it is going against your moral conscience. And in this situation, you will be imprisoned. And you should be ready to go to jail. ठीक है? And what the authorities will do? They can capture your body only in the custody, but they cannot capture your spirit. वो आपके जज्बे को कैप्चर नहीं कर सकते. वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को कैद कर सकते हैं. बट देखो, इस आइडिया से इतना जोश में नहीं आ जाना है कि अब जाके स्टेट लॉ का विरोध करने लगो, अभी जाके सड़क पे. ऐसा नहीं करना. Because at that time many countries in this world were colonies.
और वहां पे गवर्नमेंट कैसी थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। इसलिए ये बात बहुत इफेक्टिव है। मेरी बात समझ गया ना? दिस इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, एंड देयर आर डेमोक्रेटिक मीन्स टू अपोज आवर आइडियाज। हम अपनी बात को तरीके से रख सकते हैं, डेमोक्रेटिक मेथड से रख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट इज लियो टॉल्स्टॉय। तो यस प्लीज। देखो, यूटोपियन स्टेट तो एक आइडियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू सॉरी, यूटोपियन स्टेट इज एन आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, कि जहां पे देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, ओके, ऑल विल बी इक्वल, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस भी सबका एक जैसा होगा, सोशल स्टेटस भी सबका एक जैसा होगा, एंड दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। वो कभी पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ गया ना? दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। दैट्स द यूटोपियन आइडिया, ठीक है। एक तरह से देखो तो मार्क्स ने किसके आइडिया को यूटोपियन बोला? रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, पीजे प्रोदा, उनके आइडिया को क्या बोला? यूटोपियन बोला। बट एग्जैक्टली मार्क्स के आइडियाज भी एक लेवल पे आके क्या हो जाते हैं? यूटोपियन हो जाते हैं। जब वो परफेक्ट स्टेट की बात करता है तो दैट इज ऑल्सो यूटोपियन। ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो यूटोपियन एक कॉन्सेप्ट है। अब गांधी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, क्या ये भी यूटोपियन है? अगर ऐसे देखें तो यस, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल स्टेज। आप मान रहे हो कि आपको फॉर एग्जाम्पल जब गांधी से आप पूछते कि इन इंडिया देयर इज अ सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी और इसको खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, सो व्हाट गांधी विल से? गांधी विल से दैट moral conscience of the individual, okay, a time will come when there will be transformation, change of your soul, आपका हृदय परिवर्तन होगा, you will realize that discriminating with other individuals is not good, you will stop discriminating। तो जब ये हृदय परिवर्तन होगा तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बट ये हृदय परिवर्तन कब होगा? अंबेडकर ने पूछा। कब बताओ, कोई टाइम तो बता दो कि कब ये हृदय परिवर्तन होगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, राइट? सो दिस आइडिया इज नॉट प्रैक्टिकल। अंबेडकर सेड वी नीड लेजिस्लेशन। गांधी ने कहा कि लेजिस्लेशन से ये समस्या खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है, लेकिन कम तो हो पाएगी ना। मेरी बात समझ गया ना? द पीपल विल फियर फ्रॉम द लॉज, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। जैसे जब लैंड रिफॉर्म्स की बात आई तो गांधी विल से व्हाट, ओके, गांधी विल बिलीव इन द आइडिया ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपने आप को ट्रस्टी की तरह ट्रीट करेंगे, दैट वी आर द ट्रस्टी ऑफ दिस बिजनेस, वी आर एक्टिंग लाइक अ ट्रस्टी, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ आवर एम्प्लॉइज, ये हमारे एम्प्लॉइज का ही बिजनेस है। बट क्या उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा? अंबेडकर आस्ट कि कंपनी का मालिक क्या अपने एम्प्लॉइज को शेयर देगा, पेपर पे लिख के देगा? नहीं, ठीक है, वो अपने आप को ट्रस्टी की तरफ बिहेव करेगा। तो कहा यार ये चीजें बहुत प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो गांधी पे ये चार्जेस लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, राइट, कि ही वाज एन आइडियलिस्ट, ठीक है, ज्यादा आइडियलिज्म में जीते थे, ठीक है। जब मैं आपको पटेल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा आउटलुक क्या है पटेल का और गांधी का। एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है गांधी और पटेल के, ठीक है ना। तो पटेल के आइडियाज क्या थे और पटेल के अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में किस तरह की प्रेजुडिसेस बनाई गई, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किस तरह की प्रेजुडिसेस बनाई गई। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने लिखा है, ओके, वी ऑल नो दिस द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रेजुडिसेस ऑफ दैट आल्सो, ठीक है ना। गॉट इट? नाउ we are coming to the second important personality, that is टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या है? 1828 टू 1910, ठीक है, 1910। टॉल्स्टॉय, he also had a deep impact on the ideas of Gandhi, basically नॉन वायलेंस। अच्छा, नॉन वायलेंस थॉरो में भी है कि नहीं? यस और नो? यस, पता है ना कि नॉन वायलेंस मेथड से लड़ाई करनी है हमें, ठीक है। नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस यहां से भी लेके आते हैं ये, सिविल डिसोबीडियंस, ओके। परसिस्टेंस फॉर ट्रुथ, सत्याग्रह, परसिस्टेंस फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस, ये आइडिया यहां से है, लिया गया, परसिस्टेंस फॉर
ट्रूथ एंड जस्टिस। ठीक है। द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी, कुछ कंट्रीब्यूशन इनका भी है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी, कि गांधी का जो स्पिरिचुअल साइड है ये कैसे अलग है, जो ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स है उनसे कैसे अलग है। कहीं कहीं पे गांधी एंटी अथॉरिटी भी बात करते हैं, एंटी अथॉरिटी, एंटी स्टेट, ऐसी बात भी करते हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या कहा जाता है, एनार्किस्ट भी कहा जाता है। बट उस एनार्किज्म की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि गांधी जिस समय है उस समय गवर्नमेंट कैसी है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसको अभी के गवर्नमेंट से आप जोड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि गांधी ने क्या किया, गांधी आइडेंटिफाइड द स्टेट विथ अथॉरिटी एंड पावर which might suppress the rights of individual. गांधी स्टेट को कुछ ऐसे देखते हैं, गांधी looks towards state that state is having authority and power, and by using this authority and power the state might curtail the civil rights of the individuals, right? The state might curtail the civil rights of the individual. So Gandhi looks towards the state like this, identifies the state with authority and power. By using this authority and power, the state can curtail the civil rights of individuals. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात गांधी करेंगे, गॉट इट। पंचायत की बात गांधी करेंगे। पंचायत क्या है, डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि पंचायत को पावर्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बात गांधी करेंगे। सो दीज व्यूज ओके ही गॉट फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो टॉल्स्टॉय की एक फेमस बुक है, राइट दिस नेम ऑफ द बुक दैट इज वेरी फेमस, एग्जाम में पूछा जा सकता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। 1894 में ये बुक लिखी गई थी और इसका गांधी पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ टॉल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय ने क्या किया, ये बुक कब लिखी गई है, 1894, दिस इज विच सेंचुरी, 19th century. Religion was dominant or not? Yes or no? Yes. Okay. So what Leo Tolstoy did, he criticized the institutionalized form of religion. Basically, he criticized the institutionalized form of which religion? तो Christianity. ठीक है ना? इंडिया में भी क्या हो रहा था 1894, दिस इज विच सेंचुरी, 19th century. कुछ याद आया, 19th century, 1894, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स याद है? ओके, 19th सेंचुरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है। तो इंडिया में भी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन है और उस रिलीजन के साथ जो रिचुअल्स एसोसिएटेड है, ऑल दीज वर क्रिटिसाइज्ड। एट द सेम टाइम लियो टॉल्स्टॉय वाज डूइंग दिस, ही वाज क्रिटिसाइजिंग द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन। एंड लियो टॉल्स्टॉय इज फोकसिंग दैट one thing that we should learn from the religion, and that is what religion must be used to bind the people. ठीक है, all the religion preach the same message, that is what, love for humanity. और गांधी जब रिलीजन की बात करते हैं तो उनके लिए हिंदू और मुस्लिम रिलीजन अलग अलग नहीं है। he says that Gandhi is what, Gandhi is a supporter, or you can say that he advocates for religious universalism, the idea of religious universalism. मैं बता चुका हूं ना आपको द मीनिंग ऑफ रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। तो ये इम्पैक्ट भी गांधी पे किससे आता है, ओके, कुछ इन्फ्लुएंस लियो टॉल्स्टॉय का भी है। व्हेन गांधी टॉक्स अबाउट सत्याग्रह, फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, persistence for the truth, or you can say that boldly forming the truth, यानी सत्य के साथ मजबूती से खड़े रहना, दिस इज व्हाट सत्याग्रह। ठीक है, फाइटिंग फॉर द राइट कॉजेस, सत्य के लिए लड़ना, दिस इज व्हाट, ओके, सत्याग्रह। ओके, सो दिस वर्ड यू विल फाइंड सत्याग्रह, लिख लो सत्याग्रह, सत्याग्रह। ओके, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य मीन्स ट्रूथ, एंड हियर आग्रह मीन्स व्हाट, राइट, persistence for truth, holding firmly with the truth, persistence for truth, holding firmly with the truth। ठीक है, holding firmly with the truth, मतलब हमें सच के लिए लड़ना है, और वो भी कैसे लड़ना है, नॉन वायलेंस के तरीके से। मेरी बात समझ गया ना, while fighting for the truth,
we, for example, if I am individual and if I am fighting for truth, fighting for a right cause, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आपने देखी, ठीक है, one person comes and spits on the staircase, the another person comes and cleans it daily. So that is what self chosen suffering और misery. कोई और आया, अजय देवगन आया, गुटखा थूक के चला गया, आप साफ कर रहे हो, ठीक है, दैट इज व्हाट सेल्फ चूजन मिजरी, ठीक है, आपने उसको क्या किया है, खुद ही चूज किया है, सेल्फ चूजन मिजरी, ठीक है, और आप क्या मान के चल रहे हो कि आई एम नॉट गोइंग टू हार्म दिस पर्सन, मैं इस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन हिज थॉट्स एंड परसेप्शन, गॉट इट, ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, that this is the idea of Satyagraha that Gandhi got from, okay, Leo Tolstoy, ठीक है, idea of, write this idea of self chosen suffering or moral suffering, idea of self chosen suffering or moral suffering, idea of self chosen suffering or moral suffering, okay, अच्छा देखो, the one, for example, Gandhi was fighting with colonial rule, British system of administration, so Gandhi says that we are fighting with an evil structure. So we have to fight with that evil structure. And in this process, we should not have a sense of hatred towards the British people. यानी इविल से आपको क्या करना है, नफरत करना है, एविल का अपोज करना है, नॉट एविल डूअर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप बुराई से लड़ रहे हो, बुराई करने वाले से नहीं लड़ रहे हो. दिस आइडिया ही गॉट फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, राइट दिस पॉइंट दैट fighting with the evil structure or fighting with the evil, not with the evil doer. तो गुस्सा तो हमें evil doer पे ही आता है ना, पिटाई हम उसी की कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखता कहाँ है, fighting with the evil, not with the evil doer, fighting with the evil, not with the evil doer, okay, fighting with the structure, evil structure, that's colonial structure, fighting with the evil structure, colonial structure, and you will have sympathy for the British people. इंडिया हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश लोग रह रहे हैं उनके लिए सिंपैथी होगी, ऑब्वियसली वी विल नॉट यूज वायलेंस अगेंस्ट देम, हम उनके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, ही टॉट फ्रॉम द टॉल्स्टॉय, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टॉल्स्टॉय से लिखी हैं, ठीक है, टॉल्स्टॉय से तो इनकी बातचीत भी होती रहती थी, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, materialism and industrialization were criticized, materialism and industrialization were criticized, materialism and industrialization were criticized. अब गांधी का अप्रोच देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके क्या है, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात होती है, गॉट इट, इंडस्ट्रियल सेटअप की बात होती है, तो गांधी क्या कहते हैं कि कौन सा मॉडल हमें चुनना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को एनरिच करना चाहिए या फिर बिग इंडस्ट्रीज को लेके आना चाहिए, व्हाट इज द आइडिया ऑफ गांधी, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट है, गांधी इस बात को समझते हैं, ये बात भी उन्होंने कहां से सीखी थी, टॉल्स्टॉय से, टॉल्स्टॉय गांधी के कांटेक्ट में भी थे, दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस व्हाट, इट विल फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, और प्रॉफिट मेकिंग की वजह से यूज ऑफ मशीन्स विल डू व्हाट, ओके, इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर इसका असर पड़ेगा, दिस विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, पीपल विल गेट अनएम्प्लॉयड, ठीक है, सो वी शुड फर्स्ट ग्रो व्हाट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बट दैट शुड बी लिमिटेड, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके, विल मेक अस करप्ट, ठीक है, ये बात गांधी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऐसा हुआ है पास्ट में, हिस्ट्री में, with the development of industrialization in Europe, what happened, right? Exploitation of workers were ensured, और उसका नतीजा था कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म जैसे आइडियाज पॉपुलर हुए, ये बात हमें पता है, ठीक है, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो गांधी एंड टॉल्स्टॉय बोथ शेयर्स दिस आइडिया, ठीक है, दैट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दोनों क्या करते हैं, अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेहरू वाज द सपोर्टर ऑफ दिस हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
ओके एंड गांधी लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे. ही वाज सेइंग दैट कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी फोकस्ड. गॉट इट. तो यहाँ पे भी ही इज शेयरिंग आइडिया विद द लियो टॉल्स्टॉय. राइट. नेक्स्ट पॉइंट. बोथ शेयर आइडियाज अबाउट self rule or Swaraj. Both share Tolstoy and Gandhi both share ideas about self rule and Swaraj. दोनों self rule और स्वराज पे आइडियाज शेयर करते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट. both focus on the rural development. both focus on the rural development of cottage industries. दोनों ही इस बात पे फोकस करते हैं. both okay favors or supports rural development and the development of cottage industries, small scale industries, making the villages self-reliant, okay, making the village communities self-sufficient in nature, making the village communities self-sufficient in nature, self-sufficient in nature. Villages को क्या करना है? Self-sufficient in nature. Why Gandhi focused on Charkha? Charkha became the symbol of national movement. This is the reason. Okay. Right. Next point now. Next point. Right. Okay. Tolstoy talks about transformation of society through individual moral improvement. Tolstoy talks about transformation of society through individual moral improvement. Individual moral improvement. क्या ये गांधी का जो हृदय परिवर्तन सोल चेंज का कॉन्सेप्ट है इससे मिलता जुलता है? इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी शुड बी डन विथ व्हाट? इंडिविजुअल मोरल इम्प्रूवमेंट. ठीक है. एरो मार्क दे के लिख लो. ओके. इट इज सिनोनिमस विद द आइडिया ऑफ सोल चेंज. It is synonymous with the idea of soul change that was given by Gandhi. Moral improvement वही तो है. Soul change हृदय परिवर्तन. Moral improvement का idea, soul change का idea, हृदय परिवर्तन का idea. Right? This is the same idea. Okay? Soul change. Okay. Right. Next point. Soul change का मतलब क्या है? Our moral responsibility. Right. Our moral responsibility to oppose all forms of exploitation and injustices in our society. Our moral responsibility to oppose all forms of exploitation and injustices in this society. ये हमारी moral responsibility है. Our moral responsibility to oppose all forms of injustices, right, and exploitation in the society. Okay. And this is to be done by using non-violence. और ये काम कैसे करना है? This is to be done by using non-violence. That is the next important point. That this is to be done by using non-violence. Have you got some idea? That Gandhi's ideas have influence of these scholars. ठीक है ना? That is the most important thing. Now, write third name. That is John Ruskin. John Ruskin. Influence of John Ruskin. क्या influence था John Ruskin का? Right? 1819 to 1900. So this is the time period of John Ruskin. तो गांधी इस समय तो है ही है. ठीक है. He was also a writer, thinker, philanthropist, and he is best known for his work, okay, for a book, and the name of this book is Unto the Last. Read this. Unto the Last. ठीक है. गांधी पे इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है. Unto the Last. ठीक है. And what is the teaching in this book Unto the Last which have most important influence on Gandhi? ठीक है ना. Unto the Last में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है गांधी पर? Okay, so write this important teachings in this book. Important teachings in this book which have influence on Gandhi. What are the important teachings in this book? So write first teaching. First is
right? The good of an individual is contained in the good of all. The good of an individual, the good of an individual is contained, is contained in the good of all. Good of all. Who gave this idea of सर्वोदय? गांधी बात करते हैं सर्वोदय की बात. Yes, सर्वोदय. Sarva means what? All. Uday means what? Upliftment. It means upliftment of all. Universal upliftment. Sarva. Sarva means what? All. Sarva is a Sanskrit word which means all. And Uday. Uday means what? Upliftment. Upliftment. So Sarvodaya simply means what? Upliftment of all. Upliftment of all. Gandhi talks about this. Upliftment of all. इसका मतलब क्या है? That what you should think about. आपको क्या सोचना चाहिए? You should think about your individual welfare or you should think about collective welfare. किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? देखो, दो पॉइंट है यहाँ पे. One point is what? Read this. Individual welfare. Individual welfare. And the second point is collective welfare. There are two ideas here. Individual welfare and collective welfare. ठीक है? Now, just understand this. We all are living in a society. Got it? So what should be our priority? मैं पहले भी बोल चुका हूं एक बार कि my family is my world or this world is my family. What should be our motto? This world is my family. मेरी बात समझ गए? So if you will think about all, तो all में individual क्या है? ठीक है, उसके अंदर ही है. Okay? If you think about ensuring the good of all, okay, so the good of an individual is contained in that. मेरी बात समझ गए? So what we should do, what should be the aims and objectives in our life? That is for the greater good. What is good and the greater good? When we think about all, that is the greater good. When we think about us only, that is individual good. ठीक है ना? तो गांधी ने कहा प्रियोरिटी पे क्या रहना चाहिए. गांधी के लिए क्या प्रियोरिटी है बताओ? उनकी खुद की फैमिली, उनके लाइफ में सुख सुविधाएं, या इस देश का कल्याण, द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री. क्या थी प्रियोरिटी? Good for all, and that's why Gandhi was fighting. Sardar Patel is also a very important personality. ठीक है? पटेल के बारे में क्या जानते हो? कि in his childhood, okay, he was struggling a lot. Matriculation बहुत बाद में हुआ था. 22 years की एज में तो matriculation complete किया उन्होंने, right? And he always desired to learn good English. उनको इंग्लिश सीखने का बड़ा जज्बा था, right? And he has a dream to go to the London, get education of law. वकालत की पढ़ाई पढ़नी थी. ये सब उनके खुद के डिजायर्स थे. मेरी बात समझ गए? खुद के एम्बिशंस थे कि मुझे लॉ करना और ये सारी चीजें. ही वेंट टू लंदन, रिटर्न फ्रॉम देयर. ही वाज अ गुड लॉयर, एक्सीलेंट लॉयर. क्योंकि उन्होंने लॉ की प्रोफेशन को कैसे चुना था? खुद ही चुना था. ठीक है? एंड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, ब्रिटेन, व्हाट हैपेंड? ओके, ही वाज ऑलवेज ड्रेस्ड इन, ओके, सूट बूट. मेरी बात समझ गए? एकदम वेल मेंटेन रहते थे. घर से बाहर ब्रेड लाने भी जाते थे तो कोट वोट पहन लेते थे, टाई वाई लगा लेते थे. कुछ ऐसा माहौल. अब आप समझ गए होंगे. बट व्हेन ही कम इन कांटेक्ट विद गांधी, ओके, पहले तो गांधी को बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेते थे पटेल. बट व्हेन ही कम इन कांटेक्ट विद गांधी, व्हाट हैपेंड? दैट दिस कांटेक्ट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पटेल. पटेल का पूरा जीवन बदल गया, गेटअप बदल गया. ठीक है? चलने का अंदाज बदल गया. अपनी लॉयर की प्रोफेशन भी उन्होंने छोड़ दी. कब? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान. मेरी बात समझ गए? तो गांधी ने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया पटेल के कारण, ठीक है, कि उन्होंने अपने सारे शौक कुर्बान कर दिए. ठीक है? यही वाला मंत्र फूंक दिया कि द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल. ठीक है? ग्रेटर गुड. तो आइडियाज का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. सो दिस इज वन आइडिया दैट गांधी गॉट फ्रॉम जॉन रस्किन्स बुक. ठीक है ना? आगे हम देखेंगे कि कैसे इस आइडिया को अप्लाई करते गांधी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट टीचिंग इन दिस बुक क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर.
दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टीचिंग। ये सारे पॉइंट्स आप एसए में भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, एंड व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ लेबर हियर? ओके, it means that, okay, dignity of labor means if you are a lawyer, you are practicing law, if there is some barber, ठीक है, बिल्लू barber, so the value of profession, both these two professions are the same, got it, because both of them are earning their livelihood from their work, okay, so equality of all professions, that is what giving dignity to the labor, ठीक है। The value of a lawyer, okay, the value of the work of a lawyer and the value of the work of a barber is the same, ठीक है। If you are the tiller of land, if you are the handicraftsman, if you are a very a great lawyer, so the value of work of each and every person is the same and we should respect the dignity of labor। गांधी ने ये बात समझाई, ठीक है। आज सोसाइटी में इम्बैलेंस क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी नजर में डिग्निटी ऑफ लेबर ठीक नहीं है। मैं तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, ठीक है, कि जैसे एक इंस्टीट्यूट है, तो मेरे दोस्त का ही है, ठीक है, तो मैंने उसने नई बिल्डिंग बनाई, उसने फोटो भेजा, तो इंस्टीट्यूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड देन यू आर राइटिंग IAS, PCS, SI, टीचर। समझ गए आप? ठीक है, एंड दिस ट्रेंड इज फॉलोड एवरीवेयर। ऑन बैनर्स यू विल नॉट फाइंड टीचर, SI, PCS एंड IAS। क्या ऐसे क्रोनोलॉजी आपको मिलती है क्या? नहीं, बिकॉज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल द वैल्यू ऑफ द वर्क ऑफ IAS इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द वर्क ऑफ अ प्राइमरी टीचर। आपकी नजर में ये ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, जबकि हकीकत क्या है? दिस पर्सन इज डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क, ठीक है। प्राइमरी टीचर, ठीक है, मेनी पीपल हु आर ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स दे आर सर्विंग in some state, in some remote district, in some remote block, in some remote villages, they are giving their services as the primary school teachers. They are getting a fixed salary. इलेक्शन करवाने से लेके सारी की सारी जिम्मेदारी क्या है? इन्हीं के कंधों पे है, ओके। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? आप ये बताओ, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है? आपने दिल्ली के प्राइमरी टीचर्स को देखा होगा, बट क्या आपने बहराइच के प्राइमरी टीचर्स को देखा है? बहराइच के किसी गांव में, वहां पे भेड़िया आ गया, टीचर के घर के आसपास टहल रहा है, प्राइमरी टीचर फिर भी स्कूल जा रहा है और पढ़ा रहा है। सो दे आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ ना। द वैल्यू ऑफ द वर्क ऑफ SI, PCS, IS ऑल इज द सेम, बट दिस कैटेगराइजेशन इज इन आवर माइंड। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, कि यही वाला काम सबसे अच्छा है, इसीलिए इसके लिए तुम्हें पढ़ने के लिए कितनी फी देनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए। प्राइमरी टीचर की फी कितनी होगी? 2000 रुपए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी हिमसेल्फ सेज, गांधी देखो एक बात कहते हैं, एंड व्हाट ही सेज, फॉर एग्जांपल गांधी आल्सो फॉट फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लंबी क्लास नहीं हो रही है ना, आई एम इंटेंशनली टीचिंग दिस कि इससे पेपर में भी थोड़ी हेल्प आपको हो जाए, राइट, इसीलिए थोड़ा, नहीं तो मैं इसको समअप कर देता। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, कि गांधी हिमसेल्फ सेज दैट Gandhi fought for the abolition of untouchability. Ambedkar also fought for the abolition of untouchability. दोनों ने लड़ाई लड़ी, and Gandhi admits it very honestly that what Ambedkar is doing and what I am doing, Ambedkar's efforts and contributions are greater than my efforts and contributions. Who admits this? Gandhi admits this कि अंबेडकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, दोनों में से किसका ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है? अंबेडकर का ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। And why Gandhi says that? Gandhi says that, okay, I have learned the injustices that are done with the people Shudras, untouchables in this society, they are being discriminated. I have learned it from their experiences. And Gandhi and Ambedkar has learned this from his own experiences. ठीक है,
छुआछूत होने पे कैसा महसूस होता है, ये बात गांधी कह रहे हैं कि मैंने किसी और के एक्सपीरियंसेस को पूछ के जाना है, और अंबेडकर ने इन सारे एक्सपीरियंसेस को खुद ही महसूस करके जाना है। तो अंबेडकर के केस में सिंपैथी है कि एम्पैथी है? दिस इज अ काइंड ऑफ एम्पैथी। एंड गांधी सेज दैट उनका कंसर्न, ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। दिस इज द रियलिटी। हम लड़ते रहते हैं गांधी बड़ा कि अंबेडकर बड़ा, एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग, ओके, बोथ दीज टू पीपल हैव इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ईच ऑफ देम। और हमारी मीडिया ने क्या कर दिया है, अखाड़ा बना दिया है, गांधी बड़ा कि अंबेडकर बड़ा, गांधी बड़ा कि पटेल बड़ा। ठीक है, ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट इज आवर हेरिटेज। मैं बार बार कहता हूँ, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रिजर्व दिस हेरिटेज। इंडियन नेशनल मूवमेंट के आइडल्स को, पर्सनालिटी को प्रिजर्व करने हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। बट आज के टाइम में जिस तरह की डिबेट्स हो रही है, सबसे पहले इस हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करने में कौन लगा हुआ है, बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? ओके, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सनालिटीज को सामने लाके इस तरह से प्रेट करें कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ऐसा कुछ नहीं था। फॉर दैट यू नीड टू लर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, देन यू विल रियलाइज द सीरियसनेस एंड ग्रेविटी ऑफ ऑल दीज इश्यूज। तो ये बात आप समझ पा रहे हो ना? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैव यू गॉट राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर सेकेंड, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, life of simplicity, life of simplicity, it means simple life, simple life, the life of a minimalist, simple life, or the life of a minimalist. Okay, now when you look at the personality of Gandhi, what you find, that Gandhi was living a simple life or not? Yes, he was living a simple life, okay, and he was also living a life of a minimalist. वो minimalist का life भी जी रहे थे, ठीक है? So that is the most important idea. तो गांधी ने अपने लाइफ में, जैसे ये आइडिया किसका है, रस्किन का है, गांधी ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया, सिर्फ इस आइडिया को अडॉप्ट किया, आगे बढ़ाया, या फिर उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट किया? प्रैक्टिकली अडॉप्ट। Gandhi was also wearing suit, boot, and all this. ठीक है? Gandhi was fighting for the cause of Indian people, and once he was delivering a speech, okay, and he asked Indian people, masses, those who were assembled to listen to Gandhi, he said that you will have to make sacrifices for Swadeshi. The Swadeshi goods, the Swadeshi textile, the Swadeshi cloths are expensive, but you will have to choose these expensive cloths over the machine made, okay, cloths of Britain. हमें boycott करना है उसका, okay. Then a young student asked him that, okay, if I have a scarcity of money, how I can purchase these expensive clothes? So Gandhi said that आप बहुत सारे कपड़ों को मत खरीदो, minimalist बनो, purchase one and wear that. And if even you are not able to pay for that, so you should weave your clothes by yourself. चरखा ले लो और अपने कपड़े खुद ही बनाओ। गांधी ने स्पीच में तो ये बात बोल दी, but later he realized that I will also have to adopt it in my own life. And from the very next day, the get-up of Gandhi was changed. अगले दिन से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब एक ने सफेद धोती, that was a white dhoti, he started wearing that, clear? And single dhoti, okay, he used to wear till his lifetime, white colored dhoti he used to wear generally, right? तो उन्होंने क्या किया, ये जो टीचिंग दी, he adopted in his own life. आज के टाइम में क्या होता है, ज्ञान देना बहुत आसान होता है, बट उस ज्ञान को खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो सबसे मुश्किल काम किसने किया? गांधी ने किया, ओके। एंड दैट्स व्हाई गांधी इज अ ग्रेट लीडर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट देयर इज नो डिफरेंसेस, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन हिज सेइंग्स एंड इन हिज डूइंग्स। ठीक है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। आम आदमी के लिए क्या है, ये बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, व्हाट इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑफ अस? हम सबकी एक जनरल टेंडेंसी है दैट, ओके, वी डोंट वांट टू, ओके, मेक पब्लिक आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों को लोगों के सामने नहीं लाते। वी हैव अ जनरल टेंडेंसी टू हाइड आवर मिस्टेक्स। क्या अपनी गलतियां आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिखते हो क्या? नहीं, नहीं लिखते हो।
हम भी नहीं लिखते, छुपाते हैं। पाप हम सब ने किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, बट अपने पापों को हम क्या करते हैं? छुपाते हैं, गलतियों को छुपाते हैं। बट गांधी डिड व्हाट? ओके, he wrote about his mistakes that he committed in his life in his autobiography. उसमें उन्होंने खुल के लिखा कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, राइट? ही रोट इट वेरी क्लियरली, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कि वो करेज होना एक बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस है, ओके, दैट ही इज रीडिंग अदर पीपल and he is highly influenced by the ideas of other people. So this is one thing that he learned from this book, right? Next point. Okay, ये थ्री इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हो गई, राइट? अदर आइडियाज, राइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ये आइडिया भी जॉन रस्किन में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल, स्वराज सेल्फ रूल, विलेज बेस्ड economies should be promoted, village based economies should be promoted, village based economies should be promoted. Okay, right? Next point, moral and ethical values in businesses or economics should also be promoted. Moral and ethical values, okay, in business and economics should also be promoted. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी गाइडेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी गाइडेड, economic activities must be guided, okay, to fulfill the human needs, justice and compassion. Economic activities must be guided to fulfill the human needs, justice and compassion. ठीक है, this all he learned from John Ruskin. ठीक है ना? Got it? ये बात आपको समझ में आई? This all he learned from John Ruskin. Okay. Now I think that you are familiar with Gandhi's ideas, some most important influences. ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया, this is asked in prelims exam also. तो इसका आपको ध्यान रखना है कि prelims में भी आपसे पूछा जा सकता है. Now I will talk about some general influences. ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, right? Influences of Buddhism and Jainism. Yes, ये है influences of Buddhism and Jainism. This can be seen. Influences of Buddhism and Jainism can be seen. ठीक है? Now, सत्य, अहिंसा, देखो बुद्धिज्म में क्या है? सत्य, अहिंसा. The third is asteya. The fourth is aparigraha, and the fifth is avoiding intoxicating drinks. ठीक है? Avoiding intoxicating drinks. These are 5 elements. ठीक है? Avoiding intoxicating drinks. Okay. जैनिज्म में क्या है? This is same satya, ahimsa. Third is asteya, aparigrah and brahmacharya. Brahmacharya. Satya, ahimsa, asteya, aparigrah and brahmacharya. Got it? That is the point here. गांधी पे दोनों का influence. Gandhi has an influence of both. सत्य means what? Is speaking the truth always. हमेशा सच बोलना. आज के टाइम में बोल के देखना. ठीक है? Speaking the truth always. ठीक है? Second is what? Ahimsa. Ahimsa means what? Practicing non-violence. Asteya means what? Not to steal. चोरी नहीं करना. ठीक है? अपरिग्रह मीन्स व्हाट? नॉन पोजीशन. नॉन पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि अपने पास जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं रखना है. ओके, तो ओवर पोजीशन नहीं करना है. व्हाट यू नीड यू मस्ट पोजेस, बट नॉन पोजीशन मीन्स, ठीक है, जो
कंज्यूमरिस्ट अप्रोच है, ठीक है, वो नहीं करना है कि व्हाट यू नीड यू मस्ट हैव, बट ओवर कंज्यूमरिज्म शुड बी अवॉइडेड। एंड दिस इज व्हाट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। यहाँ आते हो जैनिज्म में, सो इट टॉक्स अबाउट ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ठीक है। नाउ गांधी बिलीव्स इन दिस आइडिया ऑफ ब्रह्मचर्य, गांधी ब्रह्मचर्य में यकीन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य देखो, इसके दो मीनिंग है, वन मीनिंग सेलिबेसी, ठीक है, इज द टेक्निकल मीनिंग, एंड सेकेंड मीनिंग मीन्स रेगुलेटेड बिहेवियर ऑल्सो। रेगुलेटेड बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं, द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड बिहेवियर। और ये जो रेगुलेटेड बिहेवियर है, दैट विल डू व्हाट? रेगुलेटेड बिहेवियर विल बी एबल टू कंट्रोल आवर सेंसेस। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? You, when you are disciplined, you learn how to control your senses. Okay, so brahmacharya also mean regulated behavior, disciplined behavior. And why this disciplined behavior is needed? Because this disciplined behavior means regulating our senses, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना, नियंत्रण पाना, दैट इज वाइट रेगुलेशन ऑफ आवर सेंसेस, ठीक है। सेंसेस के बारे में आप जानते हो, दैट इज द फिलोसॉफिकल पार्ट। और सेलिबेसी ये है, टेक्निकल सेंस ऑफ सेलिबेसी, ओके। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की टेक्निक क्या हो? गांधी ने कहा सेलिबेसी, सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कहा गांधी बाबा आपके आइडिया बहुत क्या है, आइडियलिस्टिक है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की टेक्निक गांधी ने दी, क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है भाई, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स चलाई, ठीक है। तो गांधी ने कहा कि भाई सेल्फ कंट्रोल्ड बिहेवियर, बट सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर या डिसिप्लिन बिहेवियर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, ठीक है, इसकी बात तो बुद्धिज्म ने भी कही, जैनिज्म ने भी कही, और हिंदू ट्रेडिशंस में भी कहा गया। अब मैं ये कहानी बता रहा हूँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ गोस्वामी तुलसीदास? मेरा भी नाम है सौरभ गोस्वामी, बट ही वॉज नॉट तुलसीदास गोस्वामी, ही वॉज गोस्वामी तुलसीदास। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज वाज ही गोस्वामी? द ओरिजिनल नेम ऑफ तुलसीदास वॉज तुलसीदास दुबे, but he is known as Goswami Tulsidas. So what is the meaning of this word Goswami? So when you are using this word before the name, it means you are the master or conqueror of your senses. That is the meaning. Goswami Tulsidas लिखने से मतलब बदल गया. Goswami indicates what? That the one who has controlled his senses is Goswami. It's not like master of cows. ये बड़ा इसका एक सिंपल मीनिंग है, ठीक है, जो एक्चुअल नहीं है. गोस्वामी मीन्स व्हाट? द वन हु कंट्रोल्स हिज सेंसेस. तो तुलसीदास के नाम के पहले गोस्वामी आ गया, इट मीन्स व्हाट? दैट उन्होंने अपने डिसिप्लिन बिहेवियर से क्या किया था? अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया था. अच्छा, अगर ये उनके नाम के बाद आ जाता तो क्या हो जाता? इट विल इंडिकेट द कास्ट, रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, इट कम्स आफ्टर माई नेम सौरभ गोस्वामी, आई एम नॉट गोस्वामी सौरभ. गोस्वामी सौरभ हो जाऊंगा तो फिर मेरे जीवन का तरीका ही बदल जाएगा. आई एम सौरभ गोस्वामी, इट इंडिकेट्स माई कास्ट, ये मेरी कास्ट को बताता है. गॉट इट? तो दिस हैज deeper meaning in Indian philosophical traditions, religious traditions, and Gandhi has a influence on these things also. Buddhism, Jainism या हिंदू religious traditions थे, इन सब का influence था गांधी पे, right? Right, next point. So influence of Buddhism, Jainism. The next important point, भगवत गीता. भगवत गीता, इसका भी influence था गांधी पे, yes. हेनरी डेविड थॉरो पे भी इसका इन्फ्लुएंस था, जॉन रस्किन पे भी इसका इन्फ्लुएंस था, राइट? So they were also influenced by the ideas of Bhagavad Gita. Gandhi was also influenced by the ideas of Bhagavad Gita. भगवत गीता से इन्फ्लुएंस थे गांधी भी, ठीक है। और भगवत गीता की टीचिंग हम सबको पता है, वो क्या है, ठीक है, कि कहाँ आपको फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है, या आपको कर्मा पे फोकस करना है. कहाँ फोकस करना है? कर्मा पे फोकस करना है, राइट? The ethical principles that are embodied in Bhagavad Gita. So Gandhi is influenced by all this. So the truth, justice, compassion, all are the teachings of Bhagavad Gita. Niskam karma are the teachings of Bhagavad Gita. तो भगवत गीता ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया. एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की लाइफ को भी इंस्पायर किया, भगवत गीता से वो बहुत इंस्पायर थे, ठीक है. और जैसे एक बार स्पीच देते हुए कलाम साहब ने ये कहा कि हम सबका जीवन जो है ना, ठीक है, वो
बाग में लगे हुए फूलों की तरह। आवर लाइफ इज लाइक फ्लावर्स इन द गार्डन। जब तक हम गार्डन में, हमारी एक लाइफ शेल होती है, मेरी बात समझ गया ना? और जब तक हम इस जीवन में हैं, हमारी जो शेल ऑफ लाइफ है, इस दौरान हमें क्या करना है? ठीक है, खुशबू बिखेरनी है। खुशबू बिखेरने का मतलब क्या है? बाई आवर एक्टिविटीज वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और एक टाइम आएगा कि क्या करना है, जैसे फूल बिखर जाते हैं वैसे हम भी बिखर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक हम रहें, हमें क्या करना है? अपने गुड डीड्स से आगे लोगों के जीवन को प्रभावित करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? भगवत गीता ऑल्सो गिव्स अस टीचिंग। जो आपने स्टोरी सुनी, ठीक है, स्टोरी सुनी है, महाभारत वगैरह की स्टोरी सुनी है, ठीक है, तो जो दुर्योधन था उसके पास कृष्ण की सेना थी। दुर्योधन वॉज पोसेसिंग द एंटायर आर्मी ऑफ कृष्ण, जिसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। और 5 पांडव जो थे उनके पास कौन था? कृष्ण। एंड कृष्ण इज द गाइड, कृष्ण इज द मेंटर, कृष्ण इज द टीचर। बुद्धा इज द गाइड, बुद्धा इज द मेंटर, बुद्धा इज द टीचर। ठीक है, तो गाइड का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंटर और टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बात हमें कैसे पता चलती है? भगवत गीता से पता चलती है। ठीक है, कि अपनी ही आर्मी दे दी किसको? दुर्योधन को। एंड ही वाज गाइडिंग, ही वाज मेंटरिंग whom? He was mentoring Pandavas. And the war results came in the favor of Pandavas. War result किसके फेवर में है? पांडवास के फेवर में। At one point of time, Arjuna will say what? That I cannot, okay, fight with my, you can say that, senior members of the family, my guru, bro. ठीक है, हम उनके साथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हम कैसे लड़े, कैसे उनको जान से मारे? तो व्हाट कृष्णा टॉट हिम, कृष्णा ने क्या कहा? यू विल हैव टू डू इट, आपको ये करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यू आर नॉट फाइटिंग विद दुर्योधन, यू आर फाइटिंग विद द इविल स्ट्रक्चर। आप एक इविल स्ट्रक्चर में से लड़ रहे हो। एंड दिस इविल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सम गुड पीपल, एंड यू विल हैव टू एलिमिनेट दोज गुड पीपल फ्रॉम दैट इविल स्ट्रक्चर। अब एलिमिनेट कैसे करोगे? क्या उनको कन्विंस करके अपनी आर्मी में ला सकते हो? नहीं। दोज पीपल आर द मैन ऑफ वर्ड्स। एक बार जुबान दे दी कि तुम्हारे साथ हो तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आपको उन्हें मारना ही पड़ेगा। एंड दिस इज धर्म। ठीक है, दैट इफ यू फाइट विद द इविल स्ट्रक्चर, इफ यू आर फाइटिंग विद द इविल स्ट्रक्चर, you will have to eliminate the goodness in that evil structure. That goodness supports that evil structure. अब इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आप अप्लाई करो। ब्रिटिश रूल, colonial rule, the British administration in India was the symbol of that evil structure. है symbol, and that evil structure is supported by whom? We Indians. ठीक है, ब्रिटिश ने लॉ कोर्ट्स बनाई एंड इंडियन लॉयर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दोज लॉ कोर्ट्स। ब्रिटिश ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाए एंड इंडियन टीचर्स आर टीचिंग इन दोज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। गांधी ने क्या कहा? पैसिव रेसिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, these good people who are supporting this evil structure, now they will stop supporting this evil structure and this evil structure will collapse. तो देखो किस तरह से महाभारता के टीचिंग्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट में अप्लाई किया। गॉट इट? दिस इज व्हाट गांधी यूज्ड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेरी बात समझ गया ना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? यही तो है कि अब हम ब्रिटिश के साथ, इस सिविल स्ट्रक्चर के साथ खड़े नहीं होंगे। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं, हम लॉ कोर्ट्स को बैकआउट करते हैं, लॉ कोर्ट्स को रिजाइन करते हैं। और इसका फायदा किसको मिलेगा? इंडियन नेशनल मूवमेंट को मिलेगा। वो इविल स्ट्रक्चर अपने आप क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। हमें उसके लिए वायलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ वी विल ब्रिंग आउट द गुड पीपल इन दैट इविल स्ट्रक्चर विल बी कोलैप्स बाय इटसेल्फ। दिस इज व्हाट द टीचिंग्स ऑफ, ओके, भगवत गीता। और भी ऐसी तमाम तरह की टीचिंग्स है। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी is idea of Gandhi is Swaraj, the concept of Swaraj. What is Gandhi's meaning of Swaraj? गांधी का मीनिंग क्या है स्वराज का? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द आइडियाज, गांधीज आइडियाज ऑफ स्वराज? क्या है स्वराज? देयर वर टू मीनिंग्स। इसके पहले कितने मीनिंग्स थे? टू मीनिंग्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। मॉडरेट मीनिंग, याद आ रहा है कुछ? मीनिंग नंबर 1, दैट सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, guidance and support of British Empire. This is moderate meaning.
एंड व्हाट इज द एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग? एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग क्या है? सेल्फ रूल बाय इंडियंस विदाउट द ओके गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। हमें ब्रिटिश का गाइडेंस और सपोर्ट नहीं चाहिए। दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग। एंड व्हाट गांधी डिड? गांधी ने कैसे एक्सप्लेन किया स्वराज को? तो इन हिज वेरी फर्स्ट मास मूवमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट। आप लिखते चलना, ये सारे पॉइंट्स बहुत टेक्निकल हैं एंड दिस विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। In his first great mass movement, what was the name of that first great mass movement? Non cooperation movement. And time period क्या है इसका? 1922, 1922. And what was the objective of this mass movement? इस mass movement का objective क्या था? So objective was स्वराज within 1 year. यहाँ पे मैं define करूंगा अभी स्वराज को. स्वराज within 1 year. And the second part of this objective was Swaraj within British Empire, if possible. Swaraj within British Empire, if possible. And the second part is if if necessary, outside British Empire, if necessary outside British Empire. Write this point. Swaraj within British Empire, if possible. And the second part is if necessary outside British Empire. If necessary outside British Empire. Swaraj within British Empire, if possible. And the second part is if necessary outside British Empire. आप बताओ, this is what? Moderate meaning or extremist meaning? Moderate meaning. कि स्वराज within British Empire, if possible. अच्छा, अगर possible नहीं हुआ तो we will do what? Then we will fight for Swaraj outside British Empire. This is what? Extremist meaning. गांधी ने क्या किया? Combo pack बना दिया. He combined the meanings of both moderate meaning and extremist meaning. And that's why revolutionary activities were stopped when non-cooperation movement started. Concept समझ गए आप? गांधी ने क्या किया? Very smartly. And that is what? A smart politics. Politics क्या है? एक सफल नेता कौन है? ठीक है, जो क्या करता है? ठीक है, दो अलग अलग दिशा में जाने वाले लोगों को साथ ले आता है। ठीक है, जैसे हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, वो इस आर्ट में बहुत माहिर हैं, कभी किसी को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ, राइट? सो दिस इज व्हाट, ओके, द ब्रिटिश moderate meaning and extremist meaning, he combined what? Both these two meanings. So he was a very smart politician, ठीक है, and that's why revolutionary activities were started, okay, before the beginning of non cooperation movement. पहली चीज, नाउ गांधी सेज दैट स्वराज इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस। स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है। गांधी सेज दैट व्हेन यू थिंक अबाउट स्वराज, सो दैट डज नॉट मीन पॉलिटिकल स्वराज ओनली। स्वराज का मतलब केवल पॉलिटिकल स्वराज नहीं है। इफ यू वांट टू गेट पॉलिटिकल स्वराज, you will have to fight for social swaraj and you will have to fight for economic swaraj first. So these are the early steps. This you need to take, and when you will take these steps, okay, you will be able to, okay, get political swaraj. तो स्वराज के लिए एक लड़ाई कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक स्वराज। एंड हाउ दिस इकोनॉमिक सोशल स्वराज? सोशल स्वराज का मतलब क्या है बताओ? कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ सोशल स्वराज? यस, कास्ट, एग्जैक्टली, ओके, देखो, जेंडर इक्वलिटी के लिए फाइट करना, गॉट इट, अपोजिंग कास्ट डिस्टिंक्शंस, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, दिस इज सोशल स्वराज। ब्रिंगिंग रिलीजियस हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, दिस इज सोशल स्वराज। एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी गिवन टू वुमेन, मेल और फीमेल दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, दोनों के पास इक्वल राइट्स हो, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्वराज। ये है स्वराज का मीनिंग, गॉट इट? यू शुड फाइट विद द रिलीजियस एंड सोशल एवल्स, रिलीजियस और सोशल एवल्स से फाइट करो, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, इनके साथ हमें लड़ना है, दैट इज सोशल स्वराज। तब सोशल स्वराज आएगा ना, गॉट इट? एंड व्हेन दिस सोशल स्वराज विल कम,
दिस सोशल स्वराज विल प्रोमोट व्हाट? सोशल यूनिटी। ये किस चीज को प्रमोट करेगा? सोशल यूनिटी। And this social unity will promote what? It will promote a sense of nationalism among the Indian people. It will promote a sense of nationalism among the Indian people. ये सोशल स्वराज भारतीय लोगों में एक प्रकार का राष्ट्रवाद, ठीक है, फीलिंग्स, बिलोंगिंगनेस, ओके, सेंस ऑफ वननेस, इस चीज को प्रमोट करेगा। तब तो हम पॉलिटिकल स्वराज की तैयारी करेंगे भाई। सीधे आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो क्या? बताओ। नहीं। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, मेंस की तैयारी करते हो, तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है यार कोचिंग के पोस्टर पे मेरा फोटो छपवाना है, तो चले जाते हो मॉक देने के लिए, तो उससे कोचिंग का रेवेन्यू बढ़ जाता है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं उनके पास, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नीडेड। अगर मेरे पास मॉक देने के लिए 200 बच्चे आएंगे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस 20-25 तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे ना, ओके, एंड आई विल टेक द क्रेडिट, ओके। सो दिस इज द सिंपल बिजनेस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ इकोनॉमिक स्वराज, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक स्वराज? इकोनॉमिक स्वराज का आइडिया क्या है बताओ? अभी आपको बताया, क्या इकोनॉमिक स्वराज का आइडिया है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, प्रोमोटिंग इंडिजिनस गुड्स, प्रोमोटिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, यही तो है इकोनॉमिक स्वराज। इससे ज्यादा क्या? दिस इज इकोनॉमिक स्वराज। इंडियन बिजनेसेस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करो, गॉट इट, ओके। स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करो। चरखा, चरखा क्यों सिंबल बना हमारे नेशनल मूवमेंट का? क्योंकि चरखा कैपेबल था क्या लाने में? इकोनॉमिक स्वराज लाने में। और उस इकोनॉमिक स्वराज से क्या मिल सकता था हमें? पॉलिटिकल स्वराज। और पॉलिटिकल स्वराज की मीनिंग क्या है? दिस इज द मीनिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, इट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? स्वराज का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। It has two meanings. Swaraj within British Empire if possible, not possible outside British Empire. But during civil disobedience movement, what will be the goal of Indian national movement? Civil disobedience movement में आगे बताऊंगा, वहां पे गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। तो देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिस इज द ऑब्जेक्टिव, बट इन द सेकेंड मूवमेंट दैट वाज इन दिस ईयर 1932, 32, 34, ये बताऊंगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो हियर द मीनिंग ऑफ स्वराज इज चेंज्ड। यहाँ पे स्वराज का मीनिंग क्या है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। व्हाट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस? नो गाइडेंस, नो सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इंडियंस आर कैपेबल ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स देयर एडमिनिस्ट्रेशन, हम खुद ही डेवलप कर लेंगे इंडिया को। मेरी बात समझ गए ना? तो यहाँ पे ये गोल है, पूर्ण स्वराज का गोल है। बट फाइनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर गांधी? गांधी ड्रीम्स ऑफ राम राज्य, दैट इज द आइडियल स्टेज। गांधी किस चीज की बात करते हैं? राम राज्य की। और ये राम राज्य क्या है? दिस इज द आइडियल स्टेज। ये राम राज्य ही आइडियल स्टेज, गॉट इट। और ये राम राज्य का आइडियल स्टेज क्या है? व्हाट इज दिस आइडियल स्टेज ऑफ राम राज्य? सो दिस आइडियल स्टेज ऑफ राम राज्य सिंपली मीन्स व्हाट? Ideal stage of Ram Rajya means what? Okay, where the people will govern themselves. This is the meaning of Ram Raj. Where the people will govern themselves. It does not mean okay Hindu state or Hindu nation. इसका मतलब ये नहीं है, right? This means that the people will govern themselves. The state authorities are not needed. People will be self-disciplined. There will be no any theft. There will be no any robbery. There will be no any crime against women. कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो अभी राम राज्य नहीं आया। क्या? एक्चुअली व्हाट what is the importance of these ideas? That if we dream of Ram Raj, for example, ठीक है, if you dream to become IAS, ठीक है, and if you are honestly working on this, you can say that preparation, so definitely you will lie somewhere, कहीं तो आओगे ना, और पहले से बेहतर स्थिति में आओगे। तो बिल्कुल ये एक जीवन में लार्जर ऑब्जेक्टिव को तय करने जैसा, ठीक है। आपने तय कर लिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है,
और अगर आप डेडिकेटेड हो इसके लिए तो यार एमएलए तो बनोगे ना, बुढ़ापे तक एक बार एमएलए तक तो बन ही सकते हो, एमपी बन सकते हो, ठीक है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे। तो जब आप लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो अपने आप को आप क्या करते हैं और बेहतर बनाते हैं। दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, कि राम राज्य, इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ राम राज्य, इट मींस दैट ओके इन ऑर्डर टू अचीव दैट वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यही तो मार्क्स ने कहा। आइडियल स्टेज को पाना मुश्किल है, बट उस आइडियल स्टेज को पाने की कोशिश जब आप करोगे, यू विल ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये बात पॉलिटिकल मुद्दों को वो करने की, तो ये तो बड़ा मतलब एक विचित्र सा माहौल है, जो मैं पहली क्लास में बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि दिस इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन, and disinformation and misinformation are among the top 10 global threats. मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग ग्लोबल थ्रेट्स, एंड दीज टू विल बी इन टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स फॉर द कमिंग नेक्स्ट 10 years। अगले 10 साल तक ये टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स में बने रहेंगे, ठीक है। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, द पीपल आर नॉट हैविंग देयर ओन ओपिनियंस, समवन एल्स इज मेकिंग देयर ओपिनियन, उनका ओपिनियन कोई और बना रहा है, right? The media is making the opinion of lakhs of people, and that is not good. The results will not be good, क्योंकि हर आदमी enlightened नहीं है। Got it? So what we should promote in the society, what should be our duty, our moral duty, क्या होना चाहिए? What we should promote? Okay, valid information, valid knowledge, or sensitive information or sensitive knowledge. Clear? So the people are promoting sensitive information. On YouTube, there are a number of videos. YouTube is flooded with the videos. Okay, in order to get views, in order to get subscribers, okay, the people will make the thumbnails very attractive and कुछ ऐसा लिखेंगे कि जिससे उनकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक देखें। बट व्हाट यू आर डूइंग, आप करॉड कर रहे हो सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को, माइंड को, एंड दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है। जितने लोग चुप हैं, जितने लोग एनलाइटेंड है, सोचो अगर वो सब लोग यूट्यूब यूज करने लगे और सही आइडियाज को प्रमोट करने लगे तो क्या होगा। ये फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोग टिक नहीं पाएंगे, मेरी बात समझ गया ना, क्योंकि उनके पास लिमिटेड नॉलेज, एंड व्हेन यू हैव वैलिड नॉलेज यू कैन काउंटर देयर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट विथ डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन, इससे भी लड़ना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट इट? वेयर एग्जैक्टली। एक्चुअली in 2013, ठीक है, I was up to, it was 2012 एग्जाम, I was appearing in interview, एग्जाम 2012 का था, 13 में आपको पता ही है कि इंटरव्यू होता है। सो द बोर्ड वाज द बोर्ड ऑफ IMG खान, ऐसे करके एक चेयरमैन थे, उन्हीं का बोर्ड था, उसमें मैं इंटरव्यू देने गया, तो हिज नेम वाज खान, ठीक है, और बियर्ड्स बड़ी बड़ी है ना, तो देख के लगेगा अरे ही इज लुकिंग अ मुस्लिम, ट्रेडिशनल मुस्लिम, बट द पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड। In that interview, that person asked me that recently Salman Rushdie has written something in satanic verses. तो आपका ओपिनियन क्या है? तो मैंने इतना तो पढ़ा था कि सैटनिक वर्सेस सलमान रश्दी ही है शायद, है ना, काफी पुराना एक किस्सा है इंटरव्यू का, अभी ध्यान आ गया तो बताया मैंने आपके क्वेश्चन पे। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई वाज नॉट अवेयर कि उसमें लिखा क्या उसने, ठीक है। So I said that I have not read that, but it seems that there is something controversial in nature. So the best idea is self-censorship. And what is the self-censorship? That we should avoid talking on that issue. ठीक है, हमें ना उसका विरोध करना है ना उसका सपोर्ट करना है। मेरी बात समझ गया ना? अगर किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल लिखा, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना, जिससे किसी की सेंटिमेंट हर्ट होती है, तो हमें उस बात को वहां से आगे बढ़ानी ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंसरशिप, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वर्ड एक्यूरेट नहीं यूज किया था क्योंकि ये वर्ड मुझे पता ही नहीं था, बट मैंने ये आइडिया बताया कि वी कैन डू दिस, दैट वी कैन नॉट डिस्कस फर्दर, वी विल नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन, ऑल दिस, एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ऑल द कंट्रोवर्शियल थिंग्स आर देन व्हाट, ठीक है, देयर इज नो सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप तो छोड़ ही दो, कोई सेंसरशिप नहीं है, और जितनी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं दोज इंफॉर्मेशंस आर फ्लडेड, ओके,
मल्टीपल टाइम्स बिफोर अस, वही हमारे सामने हजारों बार आती है, ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, और इन चैलेंजेस को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ठीक है। Now, we are coming to the next point. Here, Gandhi also says that the Swaraj means Ramraj, and the Swaraj simply means what? It was poor man's Swaraj. इसको poor man's Swaraj भी कहते हैं. Okay? Poor man's Swaraj. It means the state where Ram Rajya क्या है? The state where we will be able to bridge the gap between, okay, rich and poor. दोनों के बीच में अंतर खत्म हो जाएगा. The state where, okay, uh, there will be no any weak, there will no any person who is called stronger. तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, but this simply means what, कि एक equality का status आएगा, village will be standard and all this, okay. So this is the idea of Gandhi, ठीक है ना. In the same way, okay, we all know that Gandhi had very good relations with capitalist class. capitalist class के साथ इनके अच्छे relation थे, ठीक है. And Gandhi was excellent in, he has excellent skills of fundraising also. For popular movements you need what? Funds, ठीक है ना. ये भी एक सफल राजनेता की सबसे खास बात होती है. कुछ लोग सोचते हैं खूब पैसा हो जाए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा. लड़ोगे सारा पैसा खत्म हो जाएगा, कभी बड़े नेता नहीं बन पाओगे. असली नेता वो है जो घर से बिना पैसे के निकलता है, ठीक है, पूरा इंडिया घुमाएगा वो दूसरों के पैसे से, ठीक है. सो गांधी वॉज एन एक्सीलेंट फंड रेजर, okay, because he was knowing that if we want to launch a successful movement we need fund. किसी भी movement के लिए क्या जरूरी होता है? फंड जरूरी होता है. And in South Africa what he did, in South Africa he raised funds from the Indian business community. वहां पे क्या किया? Community farms like ashram, like Phoenix farm, Tolstoy farm, ये सब जो डेवलप किया गया फार्म, आश्रम, दिस नीडेड व्हाट? मनी. इसमें भी पैसा चाहिए था. एंड हु गेव मनी टू गांधी? गांधी को पैसा किसने दिया? द कैपिटलिस्ट क्लास, उन्होंने पैसा दिया. द सेम हैपेंड इन इंडिया आल्सो व्हेन गांधी केम टू इंडिया. सो गांधी हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास और बिजनेस क्लास. ये भी मैंने टाटा वाली वीडियो में बताया था, ठीक है. एंड कैपिटलिस्ट क्लास और बिजनेस क्लास दे वर आल्सो सपोर्टिंग गांधी. And why they were supporting Gandhi? There is a reason. And what is the reason? I've already discussed that when British came, British were the traders, merchants. Indian merchants were already connected with the international market. पहले बता चुका हूँ एक वीडियो. Now when British will come, the prospect of international trade will further increase or decrease. क्या होगा? Common guess. It will further increase. International trade का prospect और बढ़ेगा. क्योंकि ब्रिटिश हैड लॉट ऑफ कॉलोनीज, दे आर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 2/3 कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. The prospect of international trade will increase, yet it is another thing that this entire trade and commerce will be dominated by the British traders and the merchants. ये सारा ट्रेड एंड कॉमर्स को डोमिनेट कौन करेगा? ब्रिटिश. इंडियन मर्चेंट्स और बिजनेस क्लास विल सर्व एज देयर असिस्टेंट्स. ये उनके असिस्टेंट्स बनेंगे, ये उनको सेकेंडरी हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. एंड दे स्टार्टेड गेनिंग प्रॉफिट्स एज अ रिजल्ट. इनका भी प्रॉफिट बढ़ा, कुछ बिजनेस क्लासेस का प्रॉफिट बढ़ा, who were helping and supporting business class. कुछ इसके negative impacts भी हैं. Some traditional urban centers were destroyed. There are so many negative impacts also. But some groups were getting profits also. ठीक है, कुछ merchants थे from Bombay, from Gujarat, they were getting a lot of profits from this trade and commerce. Got it? When Gandhi comes, Swadeshi movement में क्या हो रहा था? Right, boycott of cloth and everything. When Gandhi will come, Gandhi will insist on the promotion of Swadeshi. Gandhi का main focus यहाँ है. And Gandhi is insisting on the idea of stricter form of non-violence. ठीक है, कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है. So when you will promote Swadeshi, and at the same time you believe that non-violence should be maintained at any cost, so this will not disrupt the Indian businesses. ठीक है. जैसे मान लो आपके छोटे से बाजार में कहीं आप जिस शहर में रहते हो हंगामा हो जाए, तो दुकानें तो बंद रहती है ना 2-3 दिन, कुछ भी हो जाए तो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ ना. अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि कोई आंदोलन हो और वो पीसफुल हो, तो क्या होगा? छोटी सी बात है. द बिजनेस क्लास विल सपोर्ट दिस मूवमेंट और नॉट? द बिजनेस क्लास विल सपोर्ट दिस मूवमेंट. ठीक है.
तो स्वदेशी के बाद ही एक ऐसा माइंडसेट बन गया था कि स्वदेशी इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, वी हैव टू प्रमोट स्वदेशी बिजनेसेस, एंड व्हेन गांधी विल कम he will further strengthen this idea of promotion of businesses. इसकी बात वो करेंगे. अच्छा, गांधी comes in India in 1915. 1915 में आते हैं, एंड 1917 में क्या हो जाता है? बोर तो नहीं हो रहा हो ना आप लोग क्लास? मैं थोड़ा फ्री होके पढ़ाता हूँ, इसी वजह से ये अपने प्लेटफॉर्म का यही फायदा है. 1917 there is Russian Revolution. Russian Revolution is what? Socialist Revolution. और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट आइडियाज विल रीच टू इंडिया आल्सो. सोशलिस्ट आइडियाज भी इंडिया में आएंगे, राइट? देयर इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है? कमिंटन इंटरनेशनल की एक ब्रांच इंडिया में खुलेगी, आगे डिस्कस करूंगा. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इट शोज दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? सोशलिज्म इज सीन इन इंडिया. भगत सिंह वाज अ सोशलिस्ट. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए बिकम्स एचएसआरए, ये भी किस चीज को दिखलाता है? ग्रोइंग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस. तो देखो 1920s पूरा का जो है दौर जो है, ये ग्रोइंग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है, ठीक है? एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, गांधी कम्स फॉरवर्ड एंड गांधी सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. गांधी ने कहा कि मैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट के आइडिया में बिलीव नहीं करता. And this communist ideas were believing in the idea of class conflict. ध्यान से समझना इस बात को. The communism believes in the idea of class conflict, that capitalist class interest and worker class interest, they are always conflicting in nature. पहले बता चुका हूं आपको. और इसके लिए क्या चाहिए? एक रिवॉल्यूशन होगा और क्या आ जाएगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. रिवॉल्यूशन में यूज ऑफ फोर्स को भी वैलिडेट किया गया, वायलेंस को भी वैलिडेट किया गया. गांधी क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताओ? गांधी बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ क्लास कोऑपरेशन. क्लास कोऑपरेशन का कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं और कोई रिवॉल्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं, ठीक है? सीधी सी बात है कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है, ओके, विल बिलीव इन ट्रस्टीशिप थियरी. गांधी सेड दैट द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास will believe in trusteeship theory. Clear? That is the most important thing. That there is no any militant economic struggle, there is no any need of militant economic struggle. The Indian capitalist class will believe in trusteeship theory, and he will consider himself as the trustee of that business. Suppose Akash is the CEO of a company, right? He is the owner of the company, and the company has a turnover of 1000 crore, right? There are 5000 people working with Akash. Akash is the owner of the company, but Akash will technically believe himself as the trustee of the company. He 5000 people are working with me. There are 5000 families, okay, whose livelihood, okay, I am supporting by my skill, okay? And for these 5000 families, for all these economic activities, for this enterprise, for this business, I am trustee, okay? I am working to protect the interests of these people. मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके घरों में चूल्हा जल सके. ये आइडिया आपके दिमाग में है, ठीक है ना? I will make the business profitable so they could get more profits. If business will suffer loss, they will suffer loss. So I am like a trustee. मैं एक trustee की तरह. Okay? It means this idea will promote what? Welfare of the worker or exploitation of the worker. This idea will promote welfare of the workers. The capitalists will be motivated, will be encouraged to bring reforms in the life of the workers. Indian capitalist class उस समय जो भी थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जमशेदपुर का जिक्र किया था, ठीक है? इंडस्ट्रियल सिटी टाउन, जमशेदजी टाटा, बताया था आपको. जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स उस समय बने इंडिया में, आप वहां घूमने जाओ, देखने जाओ, जो हैबिटेशंस है, वर्कर्स के रहने के लिए जो जगह बनाई गई है, जो शहर बनाया गया है, वो एक्सीलेंट है उस लेवल के हिसाब से. इस चीज को ध्यान में रखा गया है, राइट? वहां जो लोग काम करते, तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया, ओके? एंड द कंसिडरेशन वाज व्हाट? कि हम वर्कर्स के लाइफ को बेहतर बनाएंगे, जो लोग यहाँ काम करेंगे उनके लाइफ को बेहतर बनाएंगे. तो उस समय के कैपिटलिस्ट क्लास, दे वर गाइडेड विद दिस ट्रस्टीशिप थ्योरी. वो इस ट्रस्टीशिप थ्योरी से गाइडेड भी थे, ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट द टाटा फैमिली इज द हेरिटेज ऑफ, ओके, आवर कंट्री. ये बिजनेस फैमिली नहीं है, दे आर द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री.
national heritage. That's why I use this word. So this was happening. Trusteeship theory. अब बताओ ट्रस्टीशिप थियरी को अगर जो आदमी प्रमोट कर रहा है, क्लास कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है, तो बिजनेस क्लास उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं? खुद बताओ, करेगा ना? नॉन वायलेंस आइडियाज को जो सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस क्लास उसको सपोर्ट करेगा. गॉट इट? स्वदेशी को जो प्रमोट कर रहा है, बिजनेस क्लास उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. ओके, बिजनेस क्लास सपोर्ट करेगा. वहीं दूसरी तरफ गांधी क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सर्वोदय. गांधी बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ सर्वोदय. सर्वोदय की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. सो द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल, the workers, the peasants, will they have faith and confidence in Gandhi? Yes or no? Yes, they will also have faith and confidence in Gandhi. When Gandhi believes in the idea of poor man's Swaraj, गरीब आदमी का स्वराज. स्वराज क्या है? स्वराज is basically poor man's स्वराज. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक शुरू में पेज लिखा होता है कि जब भी मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ, जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना हो, तो मैं समाज के सबसे कमजोर आदमी को देखूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मेरे इस डिसीजन का इम्पैक्ट उस आदमी के जीवन पे क्या पड़ सकता है, और इस बिहाफ पे मैं डिसीजन लूंगा कि मेरे डिसीजन राइट है कि रॉन्ग. ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है लाइफ की, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. बिकॉज वी आर ऑफन bewildered, we are often confused in a state that this decision is right or this decision is wrong. What is Gandhi's talisman? ठीक है, गांधी का मंत्र क्या है? That when you are taking decision, okay, just imagine the weakest person, okay, or you can say that the most poor person, and just think that what will be the impact of this decision on the life of that person, and then you will take decision. And then in this situation, your moral conscience will guide that what is the decision that you should take, and that decision will be the right decision. ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में पहले ही पेज पे लिखा होता है, and that is a very important thing. So Gandhi is also focusing on the idea to uplift the life of the poor people. So obviously, okay, the people will like and support Gandhi. Okay, Gandhi emphasizes on what? Gandhi का emphasis कहाँ है? There are two things here. One is individual and the second is state. एक individual है, दूसरा है state. ठीक है, गांधी is the supporter of what? Individualism. गांधी इस बात को सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को. गांधी इज द सपोर्टर ऑफ व्हाट? सिविल राइट्स. वो सिविल राइट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, राइट? सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करने की बात करते हैं. ओके, एंड फाइनली गांधी ऑल्सो आइडियलाइज्ड अ सिचुएशन. गांधी आइडियलाइज्ड अ स्टेट दैट इज द आइडियल स्टेट. कि जो आइडियल स्टेट है वो कैसा होगा? स्टेटलेस होगा. ठीक है, कास्टलेस होगा. ऐसी भी एक आइडियल 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 स्टेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है गांधी के दिमाग में कि स्टेटलेस सोसाइटी. बट दैट इज यूटोपियन, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हु विल मेंटेन द ऑर्डर इन द स्टेट? ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है. मेरी बात समझ गया ना? बट स्टिल ही फोकसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ okay individual rights. In polity, you must have studied about DPSP, Directive Principles of State Policy, Article 36 to Article 51. याद आ रहा है कुछ? Directive Principles of State Policy. What is the meaning of DPSP? Directive Principles of State Policy. मतलब क्या है? एक Exactly. Let's look at the word itself. Directive principles. Okay. Some principles are given in these articles, and these principles are directive principles. This will guide the state policy. It means what is the task of the state? Making policies is the task of the state. So when state will make policies, okay, the state will be guided by the principles which have been directed in Article 36 to Article 51. ठीक है,
दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को इनसे क्या करना होगा, सीखना होगा, स्टेट इससे, ठीक है, दे विल लर्न द लेसन्स. एंड व्हाई दिस हैव बीन गिवन, सो दिस इज लाइक यू कैन से दैट डीपीएसपी हैज बीन गिवन, ठीक है, सो दैट, ठीक है, ये दो चीजें हैं. एक तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया, गॉट इट, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्यों दिया गया, सो दिस विल प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम टायरनी ऑफ द स्टेट, कि कहीं स्टेट का देखो नेचर ही होता है, स्टेट अथॉरिटेटिव है, गॉट इट. तो स्टेट मनमानी न कर पाए, इंडिविजुअल राइट्स को कर्टेल न कर पाए, इसके लिए क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट. इससे क्या मजबूत हुआ, इंडिविजुअलिज्म. दूसरी तरफ क्या है, स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि आपको जब काम करना है, पॉलिसीज बनानी है, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है. तो ये बैलेंस जो आया, ये बैलेंस भी कहीं ना कहीं, दिस इज द विजन ऑफ गांधी. सो गांधी प्रोमोटेड नॉन वायलेंस इंस्टीड ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस को प्रोमोट किया वायलेंस की जगह. गांधी प्रोमोटेड सर्विस इंस्टीड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सेवा भाव को प्रमोट किया शोषण की जगह. गांधी प्रोमोटेड, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गांधी प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, गांधी प्रोमोटेड सर्विस. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी चलो दिमाग में आएगा तो बताऊंगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो गांधी वाज प्रोमोटिंग ऑल दिस एंड दैट्स व्हाई गांधी वाज पॉपुलर अमॉन्ग ऑल द क्लासेस. सभी क्लासेस में गांधी क्या थे, पॉपुलर थे, बिजनेस क्लास में भी, वर्कर क्लास में भी, ठीक है, ही वाज पॉपुलर अमॉन्ग ऑल द क्लासेस. ट्रस्टीशिप थियरी, ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाती है बिजनेस क्लास को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बट इसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है, कि इसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, गॉट इट, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है ट्रस्टीशिप थ्योरी का, ठीक है. ये पूरा का पूरा मोरल ऑर्डर पर बेस्ड सिस्टम है. अच्छा, रिलीजन की जब गांधी बात करते हैं, व्हेन गांधी टॉक्स अबाउट रिलीजन, गांधी वाज अ रिलीजियस पर्सन, गांधी वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, गांधी वाज अ फिलोसॉफिक पर्सन और फिलोसोफर आल्सो, गेट गॉट इट. But his religious beliefs were not narrow. His religious beliefs were not narrow. He believes in the idea of religious universalism. It is the same like, okay, Ram Krishna Paramhans, Swami Vivekanand, Raja Ram Mohan Roy, right? So Gandhi believed in the idea of religious universalism. Religious universalism क्या है, कि all religions leads to the सेम डेस्टिनेशन. सभी धर्मों का जो डेस्टिनेशन है, ये क्या होता है, एक ही होता है. ऑल रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक डिफरेंट पाथ एंड दे हैव अ कॉमन डेस्टिनेशन, ठीक है, उन सब का एक ही उद्देश्य है. इन दिस सिचुएशन, ओके, वी कैन से दैट द गॉड इज वन. अगर इफ द डेस्टिनेशन इज द सेम, इट मींस गॉड इज वन, ठीक है. ऑफिस एक ही है, वहां पहुंचोगे, दरवाजा खोलोगे तो एक ही आदमी सीईओ है उस कंपनी का, गॉड इज वन, ठीक है. आप चाहे जिस रास्ते से आओ, रेलवे से आओ, फ्लाइट से आओ, बस से आओ, जहां पहुंचोगे एड्रेस पे, एड्रेस इज द सेम एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी इज द सेम, दैट इज गॉड, ठीक है. दिस आइडिया रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म. नाउ इन दिस सिचुएशन, do you think that Gandhi will work for the promotion of religious harmony? Yes, he will work for the promotion of religious harmony. He will always work for the promotion of Hindu Muslim unity. And this was a very important point in his constructive works program. Okay, constructive works program, right? This is a very important point in the constructive works program of Gandhi, right? Constructive works का एक सबसे important example है ये, got it? Religious harmony को promote करना. Gandhi was always the supporter of Hindu Muslim unity. गांधी हमेशा किस चीज के सपोर्टर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, ठीक है. हालांकि इसके क्या लिमिटेशन है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे. द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कास्ट, फोर वर्ण सिस्टम. फोर वर्ण सिस्टम वाज द पिलर ऑफ द सोसाइटी. टुडे आल्सो इट इज लाइक द मेन स्ट्रक्चर, फोर वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. सो द क्वेश्चन इज, गांधी एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स दिस फोर वर्ण स्ट्रक्चर. व्हाट इज योर आंसर, ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट? Accept, but he accepts this four varna structure in its original form, ठीक है. That is the most important point. So write this, Gandhi accepts this four varna structure in its original form, in its original form. अपने original form में इस four varna structure को
एक्सेप्ट करते हैं। और ओरिजिनल फॉर्म क्या है? वॉज इट अ बर्थ बेस्ड सिस्टम और अ प्रोफेशन बेस्ड सिस्टम? तो इट वॉज अ प्रोफेशन बेस्ड सिस्टम। ओके, so the original system was a profession based system, it was not a birth based system or order। ठीक है, अब ये आप बताओ कि जो आदमी फोर वर्ण सिस्टम के ओरिजिनल फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, विल ही सपोर्ट द आइडिया ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर? यस, क्लियर। और ये उस टॉपिक से भी रिलेट हो गया, सो दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, द आइडिया ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, इन हिज आश्रम्स, ठीक है, द वर्क वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा, काम वर्णा के आधार पे बटा हुआ नहीं था। गॉट इट? ओके, those works which were considered unhygiene that were also done by Gandhi। ठीक है, वो सारे काम गांधी करते थे। previously some tasks were assigned only to the Shudra communities but Gandhi did what? okay, ठीक है, गांधी ने कहा नहीं, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डिग्निटी ऑफ लेबर को रिस्टोर करना है, एंड दिस वाज द एफर्ट ऑफ गांधी। ओके, सो गांधी फॉट फॉर दिस। ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर, फोर वर्ना सिस्टम, ये भी आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? ओके, डेमोक्रेसी में गांधी सपोर्टेड व्हाट? ओके, ये तो बताऊंगा आपको। ओके, देन एजुकेशन सिस्टम में मैंने गांधी का बताया था आपको, वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, याद है? इन क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट दिस। एजुकेशन सिस्टम में वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में फोकस किस बात पे था? बुकिश नॉलेज और लर्निंग बाय एक्टिविटीज, लर्निंग बाय एक्टिविटीज। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाने पे फोकस था। ठीक है, स्टूडेंट्स को उनकी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, दिस वाज आल्सो फोकस्ड। गॉट इट? हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए दैट वंस वी गेट एजुकेशन, ओके, तो आफ्टर गेटिंग दिस एजुकेशन, ओके, हमारा एजुकेशन कुछ ऐसा हो कि जिससे स्किल बेस्ड एजुकेशन हो और हमें सोचना ना पड़े कि हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा। जनरली व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज एजुकेशन सिस्टम? मेनी पीपल गेट एजुकेशन, ओके, एंड देन दे just try to get jobs, employment, and you will also find that hundreds of people also commit suicide because they don't get suitable jobs or suitable employments. Gandhi said that why this problem this problem can be seen in the future। तो इसके दो रीजन है, पहला डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, कि जिस आदमी ने पढ़ाई कर ली, हायर एजुकेशन उसके पास है, सो दैट पर्सन विल फिट, कंसीडर हिमसेल्फ फिट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। आप कुछ और भी कर सकते हो, गॉट इट? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बहुत बड़े मतलब आपने बीटेक किया, एमटेक किया, आपकी इच्छा है कि आप हिस्ट्री लिखना शुरू करो, तो आप लिख सकते हो, हिस्ट्री पे बुक्स लिख सकते हो। कुछ एक बड़े फेमस राइटर्स हैं, ठीक है, जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड ही नहीं है, बट दे हैव रिटन गुड बुक्स ऑन हिस्ट्री। मेरी बात समझ गया ना? तो आपको किसी अपने एजुकेशन सिस्टम को किसी खास चीज से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं। स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, वंस यू गेट एजुकेशन यू डोंट नीड टू वरी फॉर द जॉब। ठीक है, जिस दिन से आप काम करना चाहो, कुछ ना कुछ काम कर सको, सो दैट शुड बी डन। बट यहाँ पे किसका रोल होता है? द रोल ऑफ स्टेट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट? स्टेट शुड क्रिएट सच इन्वायरमेंट, स्टेट को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। सो दीज वर द आइडियाज ऑफ गांधी, ये आइडिया था गांधी का। एंड लास्टली गांधी वाज अ ग्रेट एंड आर्डेंट सपोर्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। गांधी इसकी भी बात करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, राइट? गांधी सपोर्टेड द आइडिया ऑफ गिविंग एजुकेशन टू द वुमेन, और गांधी ने कहा कि वुमेन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस फ्रीडम मूवमेंट। ये एक मास मूवमेंट है, एंड इन दिस मास मूवमेंट इफ वुमेन विल join, this mass movement will be, you can say that, a great mass movement। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेल सेंट्रिक है और अगर मूवमेंट में आपने फीमेल को भी प्रमोट किया आने के लिए, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? मास मूवमेंट बदल जाएगा ना। ठीक है, अगर 1000 मेल आ रहे हैं, फीमेल भी साथ में आ रही है, तो वो 1700 हो सकता है। गॉट इट? तो मूवमेंट्स को मास मूवमेंट्स बनाने के लिए भी contribution of women is very much important, and from the very beginning Gandhi was focusing on this thing when he went to Champaran Satyagraha,
उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि women should also come and participate. खेड़ा, women should come and participate. ठीक है. Non-cooperation movement, women came and participated. Bardoli Satyagraha, women came and participated. Civil disobedience movement, women came and participated. So women participation was one of the most remarkable achievement of Gandhian movement. ठीक है ना? Gandhian movement का ये सबसे remarkable achievement था. Gandhi rejected the notion of women as the weaker sex. ठीक है. आमतौर पर महिलाओं को माना जाता है कि उनमें पुरुषों के बराबर क्षमता नहीं है. गांधी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया. गांधी सेड दैट मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क. दोनों कोई भी काम कर सकते हैं. ओके, सो देयर शुड नॉट बी दिस कॉन्सेप्ट दैट वीमेन आर वीकर. ये बात समझने की जरूरत नहीं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. गांधी अपोज्ड अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को भी अपोज किया गांधी ने. एंड फाइनली Gandhi believed in mass movement. Mass movement, it means Gandhi had faith and capability, faith and confidence in the capability of masses. Capability of masses में बहुत यकीन करते थे गांधी. Gandhi believed in the idea of mass movement. Why? There is a reason. ठीक है. For example, if you are opposing some unjust British law, और उसका विरोध करने के लिए आप अकेले चले गए, ठीक है, पुलिस स्टेशन, तो फिर उधर से लंगड़ाते हुए बाहर आएंगे आप. मेरी बात समझ गया ना? बट व्हाट इफ यू वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ओके, विथ 1,000 people, you sat on a peaceful dharna outside that police station with 1,000 people. So what will happen? The police authorities will fear to use force against you. और गांधी ने कहा बिल्कुल पीसफुल. The dharna, the protest should be completely peaceful. We will not use violence or counter violence. If police authorities will come and beat you, torture you, you will have to bear the strength. Okay, you will have to bear that torture, and for this you will have to develop your strength. A true satyagrahi is the one who will not react, even when he is beaten, even when he is tortured. Okay, and then Gandhi said that this non-violence is the weapon of the powerful people. It is not the weapon of the weaker. If we are silent, if we are not reacting to violence, it does not mean that we are weaker. God has given us the strength to, okay, survive, a strength to face this brutality. So this is the weapon of the powerful people. In this way he used to encourage the masses कि आपको ट्रू सत्याग्रही बने. ट्रू सत्याग्रही मतलब अंग्रेज पुलिस वाले आपकी पिटाई कर रहे हैं, फिर भी आपको खूब पिटना है. ठीक है, मतलब यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट टॉर्चर. बट गांधी ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? ओके, गांधी वाज द फर्स्ट लीडर हियर हु रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमरा. अभी तो सबको पता चल गया है. ठीक है, जहां जाते वहां कैमरा मैन लेके जाते. सो गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको कैमरा का महत्व पता था. व्हाट ही डिड? ओके, he will oppose British laws, and with Gandhi there will be some faith, you can say that supporters of Gandhi, and British police authorities will beat and torture them, and the photographer will take the photos, and then Gandhi will write an article, okay, in international newspapers. Gandhi was a journalist also, and then he will question the British government that is this your civilizing mission? क्या ये आपका civilizing mission है? The people are assembled here for a peaceful protest. The people are protesting for the right cause. The people are protesting within the limits, okay, of, you can say that, legitimate or constitutional means, yet you are beating and torturing. So is this your, why is this your civilizing mission? क्या यही आपका civilizing mission है? And in this way Gandhi will try to shatter the image that was created by the British government that we are the most civilized races. मेरी बात समझ गया ना? तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे गांधी हमला बोलते थे, और वो हमला नेशनल नहीं होता था. क्या होता था? इंटरनेशनल. तो जब एक बार गांधी ने फोटो निकलवा ली, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, अंग्रेजों की बदनामी हो गई. तो अगली बार गांधी जाएंगे तो ब्रिटिश अथॉरिटीज विल फियर, दे विल नॉट यूज फोर्स. तो गांधी के सपोर्टर्स कहेंगे अंग्रेज डर गए. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक नया तरीका है. फिर लोग लगे यार गांधी कितने पावरफुल लीडर है, देखो अंग्रेजों को डरा दिए. नाउ ब्रिटिश अथॉरिटीज आर नॉट यूजिंग लाठी चार्ज एंड अदर ट्रिक्स अगेंस्ट Gandhi. So Gandhi was a very
smart statesman here, okay, and this method will work, okay, and British authorities will fear from Gandhi. चंपारण गए तो फिर अंग्रेज डर गए, उन्होंने कहा ये वही गांधी है क्या, साउथ अफ्रीका वाला, यहाँ भी आ गया परेशान करने हमें, बिकॉज दे न्यू द गांधीयन स्ट्रेटजी एंड टेक्निक कि गांधी आएंगे और अकेले नहीं, there will be a mass movement and that will be a peaceful mass movement, and if we will suppress that mass movement, this will be an international news, ये national news नहीं बनेगा, क्या बनेगा, international news बन जाएगा, okay. So there are so many things that we will learn about Gandhi. So from next class I will discuss with you Gandhi's entry into the Indian politics, and while discussing the events we will also try to learn some new aspects or dimensions about Gandhi. Obviously से बहुत सारी नई बातें हम जानेंगे. We will discuss Champaran, Kheda, and Ahmedabad, non-cooperation movement of Gandhi, constructive works of Gandhi, efforts of Gandhi for the abolition of untouchability, Gandhi's CDM, civil disobedience movement, participation of Indian National Congress in round table conference. Okay, and there are so many things that we need to discuss. So when I will enter into the topics, whatever we have discussed right now will again be revised and we will get some new ideas and new dimensions. Got it? Okay. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी गांधी के बारे में, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक जानकारी है, हमने कोई बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को टच नहीं किया, सिंपल इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस दैट विल गिव अस अ जनरल आइडिया अबाउट दिस पर्सनालिटी गांधी. गॉट इट? है कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क नाउ. नो, नो क्वेश्चंस, चलिए. So see you in the next class. Thanks to all of you. Welcome.